Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss introduction to philosophy. Here we'll discuss some basic objectives. After reading these units you will be able to define philosophy, describe the scope of philosophy, discuss the branches of philosophy, analyze the relationship of education and philosophy, evaluate the role of philosophy in educational policy and practices, and idealism. What is the concept of philosophy and what is the meaning? In other words, we can say what is the meaning of philosophy. The term philosophy has been derived from two Greek words, philosophia. Philo means love or wish and sophia means wisdom or knowledge, and philosophy means love for wisdom or love for knowledge. There are different definitions of philosophy with the different philosophers have defined different philosophical definitions. According to Greek philosopher Plato, philosophy aims at a knowledge of the eternal nature of things. According to Aristotle, philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself. According to William, he defines philosophy as a collective name for questions that have not been answered to the satisfaction of that have asked them. ठीक है, तो सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की है। प्लेटो का कहना है कि जो एम्स ऑफ नॉलेज है और इटर्नल नेचर है उसके चीज़ों के हवाले से जानना, उनके बारे में आगाही हासिल करना, रियलिटी जो है, एग्जिस्टेंस जो है वो फिलॉसफी कहलाता है। जबकि एरिस्टोटल इसको साइंस का नाम देता है कि इन्वेस्टिगेट है, हम ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, नेचर को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, खुद से किस तरह से करते हैं। विलियम्स का कहना है कि जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं उन सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड करना जो है वो फिलॉसफी कहलाता है। जबकि जॉर्ज कैनलर का कहना है कि फिलॉसफी इज़ द अटेम्प्ट टू थिंक इन द मोस्ट जनरल एंड सिस्टमैटिक वे अबाउट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अबाउट द होल ऑफ रियलिटी। According to John Dewey, philosophy is the critical reviewing of familiar things. Kant said philosophy is the science and criticism of cognition, and in general terms we can say philosophy is the mother of all sciences. What is the meaning of education? The word education has been derived from the Latin words educare or educatum, meaning to bring up or to nourish. Educare means draw out or to lead for, and education meaning the act of teaching or training. According to Aristotle, education is the creation of a sound mind in a sound body. According to John Dewey, education is the process of continuous reconstruction of human experiences. According to Islamic point of view, education is the process of preparing individuals as vicegerent to Allah subhanahu wa ta'ala in society on earth. ठीक है, अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है एजुकेयर, जिसके मीनिंग है टू ब्रिंग अप, यानी किसी चीज़ को अपलिफ्ट करना, उठाना, और टू नॉलेज किसी चीज़ की को पॉलिश करना, उसकी नशोनुमा करना। और एजुकेयर जो है ये इसका मतलब है ड्रा आउट, यानी किसी चीज़ को हम अखज़ करते हैं या लीड फॉर, या किसी को आप रहनुमाई करते हैं, तो हम एजुकेशन का मीनिंग हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग, किसी चीज़ के बारे में सीखना या ट्रेनिंग हासिल करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ के हवाले से हम एक्सपर्टीज़, हम वी गेट एक्सपर्टीज़ अबाउट समथिंग। और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं, अरिस्टोटल का कहना है कि एजुकेशन जो है क्रिएशन है, साउंड माइंड है और साउंड बॉडी। जबकि जॉन डेवी का कहना है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, रिकन्स्ट्रक्शन है, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और लर्निंग जो है हमारी डेथ तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस। तो ये एक जितना लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस है। जबकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान को मैंने इस दुनिया में अपना नायब और खलीफा बनाकर मुकर्रर करके भेजा है। तो इसका मतलब यही है कि हमने अपनी हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने इसके बारे में क्या हासिल करनी है। तो ये इट इज़ अ बेसिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंसर्न विद द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन की फील्ड में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके हवाले से अगर हम जानना चाहते हैं हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या है, बेसिक फिलोसफीज़ क्या हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम क्या है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एजुकेशन फिलोसफी डील्स educational problems related to
philosophical problems related to educations or trying to resolve in a systematic way in the light of education. ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन हमें ये प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, it might be defined as the application of philosophy in the field of education to solve various educational issues. तो वो कह रहे हैं कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनका प्रॉब्लम का सलूशन हमें प्रोवाइड करते हैं. तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहलाता है. ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाता है, एरियाज़ कौन कौन सी चीज़ों को ये कवर करती है. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें एजुकेशन की फिलॉसफी से कि इसका क्या ताल्लुक है. इट प्रोवाइड्स द आंसर्स ऑफ एजुकेशनल इशूज़ लाइक वाई टू एजुकेट, के व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़, कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें एजुकेशन तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए. होम टू एजुकेट, किसको तालीम हासिल करनी चाहिए, डेफिनेटली चाइल्ड और ह्यूमन बीइंग, इंसान को. हु टू एजुकेट, आपको कौन एजुकेट करेगा, डेफिनेटली अ टीचर, इंस्ट्रक्टर, द मोर नॉलेजेबल पर्सन. व्हाट टू एजुकेट, आप क्या एजुकेट करेंगे, आपके पास करिकुलम होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए, एक निसाब होना चाहिए जिसको कि आपने रीड करना है, स्टडी करना है, एजुकेशन हासिल करनी है. हाउ टू एजुकेट, आपकी मेथड्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, सूटेबल पेडागोजीज एंड व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी फॉर एजुकेशन. व्हेन एंड वेयर टू एजुकेट एंड ETC. What is the scope of philosophy? Now come to the scope of philosophy. In scope of philosophy we lead the field of philosophical sciences. The scope of philosophy includes different philosophical sciences such as metaphysics or ontology, epistemology, logic, philosophy of science, axiology, aesthetics, ethics, philosophy of religion, philosophy of education, and philosophy of history. And philosophy of field of philosophy as comprehensive science. It deals philosophy in the science of sciences, the mother of all sciences. In other words, we can say it is the mother of all sciences. Its scope includes the criticism and synthesis of the hypotheses and conclusions of the physical and social sciences. ठीक है, तो इसमें ये कहने कि जितनी भी चीज़ों पे क्रिटिसिज्म होता है, हम सिंथेसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्डिंग करते हैं और हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं हार्ड साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में. तो ये सब जो है वो इसका स्कोप जो है वो स्कोप है फिलॉसफी का इन ऑल एरियाज. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी किस चीज़ को डील करती है. द स्कोप ऑफ फिलॉसफी क्लैरिफाइज इट्स सब्जेक्ट मैटर. Its subject matter includes the conclusions and postulates of all the physical and social sciences besides their general problems. Nature of the universe, standard of justice and conduct of life, validity of knowledge, concrete application of reason, criteria of beauty, relationship between language and thought. ठीक है, तो हमारा जस्टिस क्या है, हमारे लिए इंसाफ क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वैलिड नॉलेज कौन सा है, और किसी चीज़ की अगर हम कोई लॉजिक दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या हमारी क्या लॉजिक है, रीज़न है, ब्यूटी का क्राइटेरिया, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स का क्या आपस में ताल्लुक है, यूनिवर्स का जो है कायनात का नेचर का, यूनिवर्स को कायनात को चलाने वाला कौन है, ये सब सवालों के जवाब जो है इसका स्कोप जो है वो फिलॉसफी में आते हैं. फिलॉसफी इन सब सवालों के हमें जवाब जो है वो मुहैया करती है. नाउ कम्स टू द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. देयर आर बेसिक 3 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. ऑन्टोलॉजी है जिसको एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं. देन एपिस्टेमोलॉजी है. थर्ड वन इज़ द एक्सियोलॉजी. ऑन्टोलॉजी इज़ एन अटेम्प्ट टू डिटरमिन व्हाट इज़ रियल और व्हाट एग्जिस्ट. इन स्टडी ऑफ रियलिटी अबाउट गॉड, अबाउट मैन, अबाउट यूनिवर्स. इट डील्स विद ऑन्टोलॉजी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, डज लाइफ हैव अ पर्पस. यानी हम जब भी इस दुनिया के बारे में हम देखते हैं, हमारे सवालात हमारे दिमाग में आते हैं कि हम दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, हमें किसने तख्लीक किया है, दुनिया को चलाने वाली कौन सी हस्ती है, कायनात को मार्ज वजूद में लाने वाला कौन है, कौन सी ज़ात है जो इस निज़ाम को, दुनिया के या कायनात के निज़ाम को मेंटेन किए हुए. ठीक है, तो हम सब सवालों के जवाबात को जो है वो ऑन्टोलॉजी डील करती है. जबकि एपिस्टेमोलॉजी है क्वेश्चंस अबाउट नॉलेज एंड नोइंग. तो ये नॉलेज को डील करती है. व्हाट आर द अल्टीमेट रियलिटी के बाद यहाँ पे नॉलेज की बात आती है. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, और उसके ऑथेंटिक नॉलेज कितना है और रिवील नॉलेज या वैलिड नॉलेज कितना है, इस चीज़ को जो है एपिस्टेमोलॉजी डील करती है. वेयर डू वी फाइंड द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हाउ डू वी एक्वायर्ड नॉलेज, हम कहाँ से जो है नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है गेन करने के.
लिमिट्स ऑफ नॉलेज क्या है, आर देयर वेज ऑफ डिटर्मिनिंग द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, और जहाँ जहाँ से हम नॉलेज गेन करें क्या वो वैलिड भी है, ऑथेंटिक भी है या नहीं, व्हाट इज़ ट्रूथ, और सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब जो है वो एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। एक्सियोलॉजी सीकिंग विजडम अबाउट द नेचर एंड एथिकल एंड एस्थेटिकल वैल्यूज़। जो थर्ड ब्रांच है एक्सियोलॉजी, वो बेसिकली एथिक्स और एस्थेटिक्स में उसको सब टू डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। एथिक्स का मतलब होता है कि हमारी मॉरलिटी क्या है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हमें मॉरलिटी का नहीं पता होगा तो सारी बातें हम किसी भी सोसाइटी में एक हम पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमें एथिक्स का, नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का नहीं पता होगा तो हाउ शुड वी लिव आवर लाइव्स, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस पीस इन अ सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि सही और गलत का जो है वो फैसला करना जो है वो हमें एथिकल वैल्यूज़ में आ जाता है। और एस्थेटिक्स क्या है, हाउ डू वी जज व्हाट वी सी, टच एंड हियर। ठीक है, व्हाट इज़ ब्यूटी यानी व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी। आपके नज़दीक हुस्न जमालियात क्या है, और आपके नज़दीक को जज करने का क्राइटेरिया क्या है, ब्यूटी क्या है आपकी नज़र में, खूबसूरती क्या है आपकी नज़र में। तो ये चीज़ें जो है वो एस्थेटिक्स डील करती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द मेटाफिजिक्स। Term metaphysics means a comprehensive thinking about the nature of things. It means usually the study or theory of reality. Metaphysics study of existence. कॉस्मोलॉजी है, इसमें स्टडी ऑफ क्रिएशन है। कॉस्मोलॉजी है स्टडी ऑफ कॉस्मोस यानी यूनिवर्स का, कायनात का जो नॉलेज है। ऑन्टोलॉजी स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो हम सच्चाई की बात करते हैं, अल्टीमेट ओनली एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वो उसको जो एक्सप्लोर करती हैं। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ यानी हम अपने इनर को के बारे में, अपनी आज़ाद के बारे में कितनी आगाही हासिल कर सकते हैं, वो फिलॉसफी जो है वो हमें बताती है। एनालिसिस ऑफ सेल्फ, ठीक है, कि हम अपना एनालिसिस करें और हमें अपने बारे में आगाही हासिल होती है, हमें अपनी पर्सनालिटी ट्रेट को पता चलता है, अपने बारे में हमें हक़ाइक़ जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स। While epistemology, it is a branch of philosophy that deals concept of knowledge, sources of knowledge, an authentic source of knowledge, validity of knowledge, limits of knowledge and nature of knowledge. अब कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें कि हम कहते हैं कि हमें इल्म हमें कहाँ से हमने गेन किया है, कहाँ से हमने हासिल किया है, सोर्सेज कौन से ज़राए से इल्म हासिल कर रहे हैं, और इसकी ऑथेंटिसिटी हम बहुत ज़रूरी है जानना। कि हम कहते हैं कि जिन सोर्सेज का यूज़ करके हम इस इल्म को हासिल कर रहे हैं तो क्या वो ऑथेंटिक भी सोर्स है या नहीं है, इसकी वैलिडिटी में कोई शुबा तो नहीं है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, बाउंड्री क्या है। किसी भी नॉलेज की हम बात करें तो हम उसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, या हम जनरल नेचर कायनात के, हम नेचर को अगर हम स्टडी करते हैं कायनात को तो हम कहते हैं नेचर ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज़ की नॉलेज की नेचर को या कायनात के बारे में हम जनरल जो है वो इल्म हासिल करने को भी हम कह सकते हैं। अब ऑथेंटिक सोर्स में ये लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि रिवील नॉलेज है, जो नबी वसल्लम पर कुरान पाक के ज़रिए, वही के ज़रिए जो नॉलेज जो है वो आसन तक पहुंचा था, वो ऑथेंटिक था, जिसमें कोई शुबा नहीं था। कि हम कहते हैं कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने आप हमसे गुफ्तो शनीद की है, वाक़यात हैं, किस्से कहानियाँ बयान किए हैं, अहकामात बयान किए हैं। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है नॉलेज है, और इसके मतलब कि इसके वैलिडिटी में, ऑथेंटिक होने में कोई भी शक व शुबा नहीं है। ठीक है, इसी तरह भी अहादीस नबवी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनके हमें ऑथेंटिक होने में कोई शुबा नहीं है। लेकिन जनरली हम कभी भी कोई भी नॉलेज को गेन करते हैं तो वी वांट टू एक्सप्लोर कि इसकी वैलिडिटी क्या है, कौन कौन से सोर्सेज से हमने नॉलेज गेन किया है। और अगर जो बहुत से कदीम जैसे इल्म था वो नापैद भी हो गया था। ठीक है, और जैसे बहुत सी ज़ुबानें जो है वो नापैद हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो इन चीज़ों के बारे में जानना जो है वो एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। एक्सियोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी में स्टडी वैल्यूज़, ये मॉरलिटी को डील करती है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रांचेस, एथिक्स और एस्थेटिक्स। Ethics discuss the criteria of right and wrong, and aesthetic discuss the nature and criteria of beauty. ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी को, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है वो एथिक्स में जाता है। एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी, व्हाट इज़ द ब्यूटी, और नेचर को डिस्कस करना जो है वो एस्थेटिक में आ जाते हैं। ठीक है, come to the relationship of education and philosophy. Philosophy plays an important role in providing direction to education, providing a theory of knowledge for education. According to Saltis, 1988 has 3 dimensions.
पर्सनल हैं, पब्लिक हैं एंड प्रोफेशनल है। पर्सनल डायमेंशंस हैव अ सेट ऑफ पर्सनल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग and worthwhile in education, and public dimensions deal with the aim at guiding and directing the practice of many other things in education. Or professional dimension deals specific guidelines for the practice of teaching. Philosophy and education are closely interrelated and independent. It is the application of philosophy to study the problems of education that is known as philosophy of education. तो कहते हैं कि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लाज़िम मलज़ूम है, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, मुनहसिर होते हैं, और एजुकेशनल की जितनी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है फ़िलासफ़ी की वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहलाती है. दिस इंडिकेट्स द फैक्ट दैट प्लांट ऑफ एजुकेशन ड्रॉज इनटू नोरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ फ़िलासफ़ी. यानी एग्जांपल दी है कि अगर एक दरख्त है इल्म का तो उसकी जड़ें या पौधा जो है वो फ़िलासफ़ी पे बेस करता है. And in other words, we can say philosophy answers all the ultimate questions of education. Here is a Venn diagram where we can discuss philosophy and education. What is the certain characteristics of philosophy? What is the certain characteristics in education? And what is the mutual characteristics of philosophy and education? Philosophy is a theory while education is practical in nature. Philosophy provides the purpose or aim while education which makes it practical. Education is a dynamic side of philosophy or application of the fundamental principle of philosophy. Philosophy is wisdom, education called applied philosophy. Philosophy formulates the method, it gives ideals, values and principles, while education is the process and it works out those ideals, values and principles, and education renews and rebuilds the social structures in the pattern of philosophical ideals. It is the active aspect and the practical means of realizing the ideas of life. Relationship of education and philosophy in educational policy and practice. Both philosophy and education are interdependent. All great philosophers have employed education to translate their philosophical ideas into practices. According to Rawls, philosophy and education are like two sides of coin. Philosophy is an active theoretical side of this coin. Education is the reflective and dynamic side of philosophy. Education is a mean to achieve the goals. Scope of philosophy of education. Philosophy and aims of education, philosophy and curriculum, philosophy and textbooks, philosophy and methods of teaching, philosophy and discipline, philosophy and teacher, philosophy and evaluation. ठीक है. अगर हम इस स्कोप की बात करें तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या है, हमारे लिए कौन सा करिकुलम सूटेबल है, कौन सी बुक्स टेक्स्ट बुक्स रिक्वायर्ड हैं, सूटेबल मेथडोलॉजी कौन सी है, डिसिप्लिन क्या है, टीचर्स, एवेलुएशन क्राइटेरिया. तो इन सब चीज़ों को वो डिस्कस करती है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. ठीक है. Here is some general philosophy. There are 4 broad philosophical schools of thoughts that apply in education setting: idealism, realism, pragmatism and existentialism. Plato is the father of idealism, the great Greek philosopher, teacher of mathematics, and his famous book The Republic. Idealism is the reflection of ideas of mind, because mind is absolute reality. Word is eternal, permanent and universal. The soul is fully formed prior to birth and is perfect. अब जो प्लेटो थे उनको फादर ऑफ आइडियलिज्म समझा जाता है, और ये इनका कहना था कि जो हमारा माइंड जो है परसीव करता है वही एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसके अलावा रियलिटी या एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, और दुनिया जो है वो एक लफानी है, हमेशा रहने वाली है, और हमारी सोल भी जो है वो परफेक्ट है हमारी पैदाइश के टाइम से ही, और उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जबकि रियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट था, इनके जो फादर थे रियलिज़म के, वो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे एंड फिजिशियन एरिस्टोटल थे, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो के ही स्टूडेंट थे. लेकिन इनके जो स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल अपने उस्ताद से डिफरेंट था. इनका कहना था द अल्टीमेट रियलिटी इज़ द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फोकस इज़ ऑन द बॉडी. ठीक है. ये साइंस की बात करते थे, इन्वेस्टिगेशन की बात करते थे, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते थे, रियलिटी की बात करते थे, और बिलीव इन लॉजिक, रीजनिंग एंड रैशनल थॉट्स. द
Realist curriculum emphasize the subject of the physical world, particularly science, mathematics and medical sciences. Pragmatism, who word pragma means action and practices. Late 19th century American philosophy, also known as experimentalism and instrumentalism, focuses on the reality of experience and constant change. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में भी बाद में अमेरिकन फिलोसफीज ने कॉन्स्टेंट चेंज की बात की, जो कि प्रेगमा का जो कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस का और चेंज का, उसी को जो है वो उस पर फोकस करती थी. चार्ल्स एंड जॉन डेवी आर द फेमस प्रैग्मेटिस्ट थे. जॉन डेवी जो थे, इनका बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है इसमें, प्रैग्मेटिज्म में. टीचिंग मेथड्स, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स. अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे और एक्सपेरिमेंटलिज्म पे ज़्यादा उनका फोकस है कि स्टूडेंट जो अपने तजुर्बा से या प्रोजेक्ट मेथड से ज़्यादा सीखते हैं. एग्जिस्टेंशियलिज्म, a life-centered philosophy. Reality is subjective and lies within the individual because every person is unique in this world. The focus is on freedom, the development of authentic individuals. Existence comes before any definition of what we are. ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिकॉज देर इज़ नथिंग बिफोर द बर्थ एंड देर इज नथिंग आफ्टर द डेथ. यानी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है. यानी हर इंसान की जो है अपनी यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक वर्ड है, अपनी उसकी दुनिया है. और ये फ्रीडम की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, और कहते हैं कि हर इंसान को जो है ऑथेंटिक इंडिविजुअल को उसको डेवलपमेंट का अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है. और वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस सबसे पहले है, सबसे पहले जो है वो आपका वजूद है. ठीक है, आप एग्जिस्ट रखते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं, तो फिर उसके बाद ही बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद में आती हैं. क्योंकि ना तो हमारी दुनिया में आने से पहले हमें किसी चीज़ की आगाही या इल्म था, और ना ही हमें उसके जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद ही हमें किसी चीज़ के बारे में आगाही होगी. तो एग्जिस्टेंस वर्ड के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वालों को कहना है इट्स द स्कूल ऑफ थॉट सजेस्ट क्लासरूम्स शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस. वो कहते हैं कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, उनके पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग क्लासरूम जो है वो सेट होना चाहिए. दे स्टार्ट विद द स्टूडेंट रेदर देन द करिकुलम कंटेंट. ठीक है, फर्स्ट जो फिलोसफी थी आइडियलिज्म रियलिज्म जो है, वो स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो ट्रेडिशनल थे, टीचर सेंटर थे, जबकि जो हमारी सेकेंड है प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये दोनों जो है वो स्टूडेंट सेंटर हैं. ठीक है, आइडियलिज्म के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड, रिगार्ड्स मैन एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ आर सुपीरियर दैन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड इज़ परसीव्ड इन माइंड. ठीक है, तो प्लेटो का कहना था कि यूनिवर्सल वर्ल्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ जो भी जो प्रेजेंस है, जो कि वजूद रखती है दुनिया, और जो हमारे दिमाग जिस चीज़ को परसीव कर सकता है वही रियलिटी है. ठीक है, और वो ये स्पिरिचुअलिज्म की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं. रिगार्ड्स मैन एज स्पिरिचुअल बीइंग, तो वो स्पिरिचुअलिज्म को भी रिगार्ड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं आइडियलिज्म वाले. और वो ये कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ आर सुपीरियर. ठीक है, कि आइडियाज़ को और वैल्यूज़ को वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और मटेरियलिस्टिक वर्ड से ज़्यादा वो अपनी थॉट्स को, आपकी थिंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कि आपका माइंड जो परसीव करता है वही एग्जिस्टेंस है, वही रियलिटी है. ठीक है, रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड, कि जो आपने चीज़ें परसीव की हैं, और स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा जो है ये बात करते हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स को, स्पिरिचुअलिटी का रूह को बहुत ज़्यादा ये मानने वाले हैं. ठीक है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म, यूनिवर्स एग्जिस्ट विद इन द स्पिरिट ऑफ माइंड. और इसके अलावा वो कहते हैं मैग्नेटिस्ट explanation of universe is inadequate. Theological explanation of universe, synthesis between man and nature, man is central to the universe. Or special attention to the normative and social sciences, evaluate explanation of the universe. Conceptualist, universe is unique, emphasize on the mental or spiritual aspects of universe. ठीक है, तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें वो कहते हैं यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब स्पिरिट ऑफ माइंड की बात करते हैं, परसेप्शन ऑफ माइंड की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं. लेकिन कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम लिमिटेड इनके जो है एक्सप्लेनेशन है अदर एस्पेक्ट्स को, सिंथेसिस वगैरह, तजिया पे, या फिर
मैन के हवाले से, यानी कि उसका यूनिवर्सल में रोल क्या है, और डिफरेंट चीज़ों को जो है इन्होंने निगलेक्ट किया है, और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया हुआ है। टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म में इसकी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की हम बात करें, ओनली माइंड्स एंड मेंटल कॉन्टेंट्स एग्जिस्ट एसोसिएटेड विद द इमटेरियलिज्म, यानी मटेरियल थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। फिनोमिनलिज्म की हम बात करें तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट जस्टिफाइबल be said to exist in themselves, but only on as perceptual phenomena or sensory stimuli situated in time and in space. Reduce talk about physical objects in the external world or talk about bundles of sense data. तो कहने के एग्जिस्टेंस वर्ड के हवाले से इन्होंने एक्सटर्नल वर्ड के हवाले से बहुत कम बात की और ज़्यादा परसेप्शन ऑफ माइंड की ये बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है, आइडियलिस्ट मेटाफिजिक्स that postulates that there is in an important sense only one perceiver and that this perceiver is one with that which is perceived. एम्स एंड आइडिया ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन है, एक्सॉल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन है, यूनिवर्सल एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स है, conservation, promotion and transmission of cultural heritage, bringing out or the enrichment of the cultural environment, development of moral sense, cultivation of spiritual values, prepare for adulthood। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने बारे में आगाही हासिल करना। इसी तरह से वो कहने की एग्जॉल्टेशन है पर्सनालिटी की, और सेल्फ रियलाइजेशन पे वो कहते हैं जितना आप खुद को अपने बारे में आगाही हासिल करते हो तो उतनी अपने आप बारे में आप जान सकते हो। फिर कायनात का जो नॉलेज है, दुनिया का इल्म है, उसके हवाले से है। फिर इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स क्या हैं उसके हवाले से, उसको नोरिश करने के हवाले से हैं। और ये गुफ्तो शनीद करते हैं, प्रमोशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, यानी वन जनरेशन से अदर जनरेशन को कहते हैं। एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि कल्चर को जो है वो प्रमोट करना अपने, और अपने हेरिटेज को प्रमोट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। और इसके अलावा कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मॉरल सेंसेस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करते हैं, और अडल्टहुड की प्रिपरेशन है वो कहते हैं एजुकेशन का बेसिक पर्पस है। ठीक है, इनके नज़दीक करिकुलम कैसा होना चाहिए? आइडियलिज्म एंड करिकुलम, लिबरल आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, कॉग्निटिव नॉलेज स्किल्स विद वर्ड्स, स्ट्रक्चर्ड रिजिड करिकुलम, प्री एग्जिस्टेंस रियलिटी फाइनाइट और रिवील्ड। ठीक है, यानी रिवील जो है वही के ज़रिए जो हासिल होता है, प्री एग्जिस्टेंस रियलिटी जो कि रियलिटी से पहले की चीज़ें हैं, रिजिड करिकुलम जिसपे मतलब कि अपने स्कूलों को चेंज नहीं करते, ट्रेडिशनल मेथड्स पे फोकस करते हैं, और स्ट्रक्चर करिकुलम होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए, कोग्निटिव होना चाहिए, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को ये फ़रोग देते हैं। ठीक है, एजुकेटर का रोल इसमें क्या है? Idealism and the educator, model of morality and scholarship mentor, scholarship mentor की बात करते हैं। प्रिस्मेटिक है, ट्रेडिशनल है, अडल्ट नो है, चिल्ड्रन डू नॉट एग्जाम्पलर ऑफ द आइडियल, हाई टीचर कंट्रोल है, टीचर सेंटर इनकी फिलोसफी है। इसके अलावा इसमें एजुकेशनल मेथड्स जो हैं वो लेक्चर मेथड है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड पे जो है एम्फसाइज़ करते हैं, रिसाइटेशन मेथड पे ये बात करते हैं, और डायलेक्टिकल मेथड है जिसमें डीप लेवल डिस्कशन है, एसेज हैं और वर्ड डिपेंडेंट। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें आइडियलिज्म में तो ओबीडियंस है, यानी कि वो कहते हैं कि ओबीडियंस को वो कहते हैं होना चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन रूल्स होने चाहिए, पनिशमेंट्स हैं और एक्सट्रिंसिक। डिसिप्लिन मेथड में स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का है, थ्रू दो लव कॉर्पोरल पनिशमेंट। आइडियलिज्म इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, वाइडर एंड हायर एम्स, द आइडियल टीचर, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी साइडेड करिकुलम, मॉरल एजुकेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है और साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं। Now come to the educational philosophy. There are four general education philosophy: perennialism, essentialism, progressivism, and deconstructionism. Perennialism means principles. Life is set of some basic, unchangeable, and unchallengeable, everlasting principles. Humans are rational beings, and their minds need to be developed. Curriculum focuses on cultural literacy,
stressing students' growth in enduring disciplines. Study of great book by Robert, उनके नज़दीक जो है उनकी बुक का जो नाम होता है ग्रेट बुक, जो है वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी है उसको स्टडी करना। रॉबर्ट मैनर्ड उनका नेम है। और इसके अलावा एसेंशियलिज्म में है स्टडी ऑफ एसेंशियल नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज। एसेंशियलिज्म वाले जो हैं वो स्किल की बात करते हैं और स्किलफुल बेस नॉलेज की बात करते हैं, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। प्रमोट्स कोर करिकुलम, टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, training students to read, write, speak, and compute clearly and logically. Students should be taught hard work, respect for authority and discipline. तो इनके नज़दीक कोर करिकुलम जो है और ये टीचर सेंटर्ड ही है, फिलोसफी दोनों फर्स्ट टू। और वो कहते हैं ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की ताकि वो इस एसेंशियल स्किल्स को लर्न कर सकें, लॉजिकली भी और अंडरस्टैंड कर सकें। और बच्चों को जो है वो हार्ड वर्क करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, टीचर को रिस्पेक्ट करना सिखानी चाहिए और डिसिप्लिन सिखानी चाहिए लाइफ में। प्रोग्रेसिविज्म वाले जो हैं ये अगेन ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर। जॉन डेवी जो है इनको जो है प्रेगनेंट समझा जाता है और यही प्रोग्रेसिज्म के भी बानी हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशनल फिलोसफी है। प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड रादर देन ऑन द कंटेंट और द टीचर। ठीक है, वो चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस एम्फोसाइज करते हैं बजाय करिकुलम के, कंटेंट के और टीचर के। लर्नर्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन द फिजिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। Reconstructionism philosophy of educational and social reforms, focus on change, future and democracy, critical thinking and use of technology. A revolutionary theory है। Curriculum focuses on students' experience and taking social action on real problems. Community-based learning and bringing the world into the classroom are also strategies. अब इसमें वो रिकन्स्ट्रक्शन में वो ये कह रहे हैं कि आप सोशल रिफॉर्म की, सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप फ्यूचर को देखें, सोसाइटी में चेंज अगर नहीं लेंगे, भी चाइल्ड सेंटर अप्रोच है और ये थॉट है। वो कहते हैं कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, जिद्दत को अगर हम नहीं अपनाएंगे। तो फ्यूचर को डेमोक्रेसी वैल्यूज़ पे ये ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ वो कहते हैं आना चाहिए और एक इनकलाब होना चाहिए। अगर दुनिया में इनकलाब आ गया तो आपको भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये करिकुलम पे फोकस करते हैं कि बच्चे के जो एक्सपीरियंस है ना लाइफ के, वो उससे बहुत लर्न करता है और सोशल एक्शन यानी एक्टिविस्ट बनाते हैं ताकि रियल लाइफ प्रॉब्लम को जो है फेस करने की सलाहियत रख सके, रियल लाइफ प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकें। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है कि अपनी सोसाइटी के बारे में इल्म होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हमें उन्हीं तरीक़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि ताकि जो लोग तरक्की कर चुके हैं उनके तरीक़ों को अगर हम इख्तियार करेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे। जिद्दत की बात करते हैं। ब्रिंगिंग द वर्ड इनटू द क्लासरूम एंड आल्सो स्ट्रेटजी, कहते हैं कि यूजफुल स्ट्रेटजी और इंस्ट्रक्शन प्लानिंग आप लेके हैं जिसमें चेंज की बात करें, आईटी होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, बच्चे के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।